اور ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے شیلا خان نے بھی. اور شیلا خان کی جو اسکن کی روٹین ہے, یہ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ کورین اسکن جناب ایک اہم باتیں بنی ہوئی, لیکن ہم ان کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں بھی ہوتی ہوگی, کیونکہ اسکن بھی بڑی پیاری ہے اور یہ ہماری اسکن بھی پیاری کری تھی. کیسی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. شیلا, سب سے پہلے تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ اپنے اسکن کیئر پہ مہینے پہ کتنے پیسے خرچ کرتی ہیں؟ اچھے خاصے. ہاں, یہ بہت خرچی ہیں. میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہوں. میں ایسے پروڈکٹس پہ بھی, میں لوکل میں بھی خرچ کرتی ہوں اور میں انٹرنیشنل پہ بھی خرچ کرتی ہوں. میں ایک, آپ مجھے کہہ سکتے ہیں خپتی عورت ہوں اس چیز کے معاملے میں. کل ہی میں اپنے میاں کو کچھ دکھا رہی تھی اور میں نے کہا کہ مجھے یہ خریدنا ہے, مجھے منگوا کے دے دے. میں میاں نے میری بیٹی کو بولا بیٹا ہیلی کاپٹر نکالو, اماں نے بولا یہ خرید کے لے کر آنا ہے. تو میں اسپینڈنگ کرتی ہوں, اور میں اسپینڈنگ اس لیے بھی کرتی ہوں بیکاز مجھے اچھا لگتا ہے. دوسرا میں اسپینڈنگ اس لیے کرتی ہوں کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر سکوں اپنے پلیٹ فارم کے تھرو کہ صحیح چیز کیا ہے, غلط چیز کیا ہے. لیکن 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ میری ریگولرز ہیں. اور وہ کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ وہ میرا موئسچرائزر ہے, میرے 2 قسم کے سن بلاکس ہیں, اور میرا ایک سیرم ہے, میرے ڈیلی کا ہے. یہ 4 چیزیں تو ڈیلی. آپ بات سنیں تو وہ آپ وہ نہیں لگاتی, وہ جو 8-9 اسکن کے پروڈکٹس منہ پہ لگا کے سونے ہوتے ہیں, پھر سپورٹ کی بھی 8-9 چیزیں منہ پہ لگانی ہوتی ہیں؟ میں نہیں لگاتی. تو لیفٹ آؤٹ فیل نہیں کرتی؟ میں تو چلو میں تو کہتی ہوں نہیں, میں لیفٹ آؤٹ فیل نہیں کرتی. میں نے اب کیا ہوا کیا ہے کہ میں ہر ڈے میں نے اپنی وہ چیز ڈیوائڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے, اب بعض اوقات ویک میں میرے پاس 2 دن ایسے بھی ہوتے ہیں, وہ ان 2 دنوں میں, ہفتے میں سے ان 2 دنوں میں اسکن پہ کچھ نہیں لگاتی, میں رات کو ایسے ہی سو جاتی ہوں. صرف منہ دھوئے سو گئی؟ صرف وضو کے ساتھ سو گئی, اور صبح اٹھا وضو کیا, موئسچرائزر لگایا, سن بلاک لگا لیا, دیٹ از اٹ. وہ 2 دن کا بھی میں بریک دے دیتی ہوں, میں اوور لوڈنگ نہیں کرتی. یہ دیکھیں نا, یہ آج یہ چیز یہ سیکھیں پلیز کہ جو اوور لوڈ کرنا ہوتا ہے نا اسکن کو, یہ ضرور, وہ تو ڈاکٹر بھی بتا رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو اسپیشلسٹ ہے وہ بھی بتا رہی ہیں. اچھا, میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہے فار نو ریزن, اور لوگ خرید رہے ہیں, اور جس کو نہیں خریدنا چاہیے؟ وائٹامن سی. وائٹامن سی ایکٹیو انگریڈینٹس. کوئی سا بھی ہے. ہم جب ایکٹیو انگریڈینٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایکٹیو انگریڈینٹس کیا ہیں؟ اس میں گلائکولک آ جاتا ہے. سب سے پہلے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس گلائکولک یوز کر لیں گے اور فیئر ہو جائیں گے اینڈ فریش نظر آنے لگیں گے, یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ گلائکولک تو آپ کی اسکن پیلنگ کرتا ہے, جو آپ کا آؤٹر موسٹ لیئر ہے, جو بیریئر ہے, جس کو ہم پروٹیکٹیو شیلڈ کہتے ہیں, اس کی تھننگ کر دیتا ہے. تو یہ بالکل ایک بہت ڈینجرس ہے اسکن کے لیے, نہیں کرنا چاہیے. ہاں, اگر کوئی ایکسپرٹ, کوئی ایستھیٹیشین, یا کہیں آپ ایسی جگہ گئے ہیں ٹریٹمنٹ, شیلا کے پاس چلے گئے, میرے پاس آ گئے, تو تب تو ظاہر ہے کہ وہ ڈائلوٹ کر کے اور اس کا ایک کمبینیشن بنا کر اس کو دیا جا سکتا ہے, پیلنگ, کیمیکل پیل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ ہوم کیئر میں سے یوز کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے, نہیں کرنا چاہیے. اوکے. آپ اینجی؟ جی جناب. ہاں اینجی, آپ بتائیں سر, کون سے پروڈکٹ ہے جو ان تو بہت ہے کہ استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ ایز شی سیڈ. اچھا, اندر تھنگ از کہ جسٹ بیکاز وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کورین پروڈکٹ ہے, بغیر دیکھے سوچے سمجھے کہ ویدر اس کی کوالٹی کیا ہے کیا نہیں ہے, چونکہ وہ آن لائن مل رہا ہے, وہ کورین ہے, تو ہم فٹافٹ اس کو ہم پریس کرتے ہیں, اپنی کارٹ میں ڈالتے ہیں اور منگا لیتے ہیں. اچھا جی, میں نا پچھلے اکتوبر میں, لاسٹ اکتوبر تو خاص میں بھی ٹائم ہو گیا ہے, میں گئی ہوئی تھی لنڈن گئی ہوئی تھی, تو وہاں پہ کچھ جب چیزیں خریدی تو میری دوست نے اسکن کے پروڈکٹس, میں نے کہا کیا خریدوں, میری دوست نے مجھے کہا اچھا پتا اس کو بھی نہیں ہے, ہم دونوں صرف دیکھ رہے ہیں, تو اس نے کہا مدیہ یہ کورین ہے. میں نے کہا کورین ہے فوراً مطلب دماغ میں ایسی چیزیں ہوگی, اور کر لیا نہ کوئی اس کا ایسے کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن اگر آپ کو اتنی اویئرنیس ہے, اس کے باوجود آپ یہ کر رہے ہیں, یہ I'm not saying کہ کورین پروڈکٹس اچھی نہیں, لیکن ہر پروڈکٹ اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے. اچھا, کیونکہ I am not very pro in the skin, میں بھی وہ ہے کہ بس منہ دھویا, چلو ایک موئسچرائزر لگایا, سو گئے. اور ایک جو رائس والا چکر آج کل ہے, یہ رائس والے چکر, یہ وہ والے چکر تو نہیں جو آپ لوگوں کو دیتے واپس آ جاتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے شیزا لاہور سے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم شیزا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں, ٹھیک ہیں؟ ہاں جی میں ٹھیک ہوں. اچھا, کیا پوچھنا چاہو گی؟ مجھے یہ پوچھنا ہے, میری اسکن نا ڈرائی بہت زیادہ ہے, ڈرائینس ہے. مجھے نا یہاں سے ایک بیوٹی پارلر والے نے سجیسٹ کیا تھا فیس واش وٹامن سی والا, اس کے بعد میری اسکن زیادہ ہی ڈرائی ہو گئی ہے اور وائٹ وائٹ دھبے بن گئے. اس کے بعد مجھے چہرے پہ تل کے بہت زیادہ نشان. اچھا, چہرے پہ پیل کے نشان ہے؟
सफ़ेद तिल के, अच्छा। शीजा, जी जी। शीजा किधर चली गई हो तुम? हैं हाँ जी। बस ये प्रॉब्लम है? जी, चेहरे पे तिल बहुत ज्यादा है। अच्छा, तिल तेरे पे बहुत, चलें ठीक है चले जी। मैं डॉक्टर साहब आपसे शुरू करती हूँ। ड्राई स्किन है तो उसके लिए हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करें, और सिंस उनको रिएक्शन हुआ है किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से, तो बेटर है कि कंसल्ट अ डॉक्टर, ताकि वो इन पर्सन चेकअप कर सकें, एंड देन ओनली देन उसके बाद वी कैन फिगर आउट कि तो क्या जो पॉलर वाली बात जिन्होंने उनको विटामिन सी वाला फेस वॉश दिया उसको भी फिर नहीं, स्टॉप यूजिंग इट। विटामिन सी ऑलरेडी ड्राई स्किन को और ड्राई करेगा, ड्राई करता है। इसका मतलब है विटामिन सी जो है वो हमें ऑयली स्किन के लिए इस्तेमाल करना सेल्फ चाहिए, ट्रीट ना उसके करें लिए भी please। नहीं। हाँ, सेल्फ ट्रीट ना करेंगे, खुद से स्टार्ट कर दें। सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ Self होती है treatment कि है। आपने ओवर द काउंटर कुछ भी खरीदा या आपके सैलून वाली ने कुछ भी आपको दे दिया। आई एम नॉट सेइंग कि सैलून वालियाँ गलत होती हैं लेकिन कभी सही भी नहीं होते। जब देखिए इग्नोरेंस, हम अमूमन कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, लेकिन बाज़ दफ़ा जब आपको नॉलेज नहीं होती है और आप दूसरों को ऐसे पोज करते हैं कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है, मैं बिला वजह कोई भी प्रोडक्ट आपको दे दूंगी, तो वो भी सही नहीं है। इसलिए हर किसी के ऊपर ट्रस्ट करना भी सही नहीं होता। मैं तो हमेशा समझती हूँ कि सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए। ट्रू। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इनको अब? नहीं, जो ये ड्राइनेस है इनके फेस पर, वो एक्चुअली जिनको वो तिल कह रही हैं, वो स्पॉट्स होते हैं, जो ड्राइनेस के वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। विटामिन सी का रिएक्शन यही है, और ये उमूमन कॉम्बिनेशन स्किन पर होता है। अगर ये ड्राई कह रही हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि स्किन ड्राई होगी इनकी, इनके चीक्स ड्राई होंगे और कॉम्बिनेशन स्किन की वजह से नोज पर ऑयल होगा। तो विटामिन सी को डाइल्यूट करके वो यूज़ कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आप इसको बिल्कुल ही बैन कर दें और आप इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए, लेकिन आप डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हैं फरहाना, अंडर सुपरविजन, अंडर सुपरविजन। बट आई थिंक अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए बेटर ये कि कंसल्ट डॉक्टर, वही ना, अंडर उसके बाद ही सुपरविजन कोई स्टेप लिया जाए। शला, आपको क्या लगता है? ड्राइनेस की वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। फॉर मी, अगर मेरे सब पर्सपेक्टिव से पूछेंगे, मेरे लिए उसकी एज पता करना बहुत जरूरी है। व्हाट एज क्राइटेरिया शी मल्टीफैक्टोरियल अगर यंग लड़की है और अगर उसकी स्किन ड्राई है, दैट मीन्स नेचुरली ऑयल प्रोडक्शन जो है वो कम है। सो उस चीज़ के लिए मैं उनको हाइलुरोनिक एसिड्स वगैरह रेकमेंड नहीं करूँगी। येस, शी नीड्स टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेप, बट आई वुड डेफिनेटली टेल हर कि आपको रिपेयरिंग वाली जो चीज़ें होती हैं और जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, बिकॉज ड्राई स्किन को आप जितना ज़्यादा हाइलुरोनिक एसिड देंगे, आई माइट बी रॉन्ग ऑन कॉन्ट्राडिक्टिंग विद द डॉक्टर्स, बट वो आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राइंग पे लेके जाती है। बिकॉज द मोर द वाटर इट इज़ ऑन योर बॉडी और ऑन योर स्किन, द मोर इट्स गोइंग टू मेक योर स्किन डिहाइड्रेटेड। अगर आप देखें, अगर आप नहाते हैं शावर में थोड़ी देर ज़्यादा रह जाते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स पड़ जाते हैं और डिहाइड्रेट हो जाती है। सो यू नीड अ बैलेंस बिटवीन मॉइस्चर, ऑयल एंड वाटर। सूदिंग प्रोडक्ट्स ओवरलोड नहीं करना चाहिए मेडिकली स्पीकिंग, बट इट्स नीडेड। अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आई वुड से मेडिकली स्पीकिंग मैं बताऊंगी तो यस, हाइलुरोनिक एसिड इज बैलेंस ऑफ ऑयल्स एंड something that is more of a molecular based on H2O. अच्छा, ऑयल की बात हुई, पहले मुझे एक बात बताएं, अम्मियाँ और जो दादी हमारी होती थी वो बताती थी कि उनकी स्किन केयर क्या होती थी कि वो बेसन से मुंह धो लेती थी, एंड देन देयर वाज अनदर थिंग, मलाई भी लगा, हाँ मलाई से वो और ग्लिसरीन लगा लेती थी, तो उनकी स्किन लश्कारे मारती हुई स्किन होती थी, और ये उनकी बड़ी ज़बरदस्त स्किन हमेशा थ्रू आउट द लाइफ रही। सो मुझे बताएं कि क्या वो ज़्यादा सही चीज़ थी या अब हमारे पास ज़्यादा अच्छी चीज़ें आ गई हैं? देखिए, उसमें भी ये था कि अगर आपकी स्किन ड्राई होती थी और अगर आप बेसन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, नींबू उसमें डाल के, वो तो वो भी स्किन को ड्राई कर देता था। सो दे वुड बैलेंस इट विद मलाई या उसमें दूध डाल देते थे, तो उस वजह से। बट आई पर्सनली, आई डोंट नो दीज गर्ल्स विल एग्री विद मी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप अपनी स्किन के ऊपर नेचुरल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इट हेल्प्स, और वो कम रिस्की होता है। लेस इज मोर। हाँ, जिसे बयान जी को जैसा कहा इन्होंने, एक तो हाइलुरोनिक बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा नेचुरली हमारी बॉडी में मौजूद होता है, तो वो बहुत नेचुरली आपको रिकवर करेगा उसको, जैसे ड्राइनेस है या पैचेस हैं, कुछ भी है, और डिपेंड्स ऑन योर डाइट।
आपका गट इतना डिस्टर्ब है लोगों का आजकल कि हमारे सोने का टाइम नहीं, हमारे खाने का टाइम नहीं, तो उससे स्किन पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है, ये हमें कहना लेकिन वो जो मैं पुरानी चीज़ों की बात कर रही थी कि वो जो मुंह पे मलाई लगा लेते थे, जो बेसन लगा लेते थे, तो क्या वो सही चीज़ थी? मैं उसकी बात कर रही हूँ। ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ देखिए, सब फिर दोबारा वापस आ रहे हैं और हमें आना चाहिए। तो आप जैसे हम अभी जिक्र कर रहे थे, तो बालाई बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसको मलाई एनजी कह रही हैं, क्रीम, वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें हाँ आप ये कर सकते हैं कि उसमें आप विटामिन ई को यूज़ कर सकते हैं, एम्प्यूल्स आते हैं, ड्रॉप्स आते हैं। सुनिए, वो आप उसमें use सॉरी कर मैम सकते हैं। कटिंग यू ऑफ, उसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी बाज़ दफ़ा लोग डालते थे। जी बिल्कुल, उस वक्त बिल्कुल हो ज़ाफ़रान, सकता उस है। वक्त ज़ाफ़रान भी अच्छा और सही मिलता है। शहद भी डालते हैं बाज़ लोग। शहद डालते हैं, जी बिल्कुल। शहद डालते हैं और क्यूकम्बर का क्यूकम्बर वाटर बहुत अच्छा है, हाँ, वो आप जितनी हाइड्रेट चीज़ों को- करता है स्किन को, बड़ा ग्लो देता है स्किन को। अच्छा, उपटन के लिए मैं ये कहूँगी कि स्पेशली मैं ब्राइड्स को कहती हूँ, प्लीज़ इट्स अ नो। अच्छा, बिकॉज वो इतना ज़्यादा चेहरे पे उपटन कर लेते हैं कि फील वो होते हैं। स्किन जो है वो ओवर ड्राई हो जाती है। बिकॉज अब ये जो नॉर्मली उपटन पहले जो होते थे लोग घरों में बनाते थे, तो उसकी एक अलग वो थी, अफादियत कह लें। जी जी। लेकिन अब जो चूंकि वो है तो बड़ा कमर्शियल हो गया है, तो पता नहीं उसमें क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं, तो वो बाज़ दफ़ा इतनी ज़ोर से उसको एज ए स्क्रब यूज़ करते हैं, तो इतना ज़्यादा ओवर कर उसमें देते क्या हैं lead पर कि डालते स्किन जो होंगे है वो आप? इरिटेटेड हो जाती है। एसिडिक उसमें पेरोक्साइड वगैरह यूज़ किया जाता है। अभी जो हम रेडीमेड लेकर आते हैं बाजार से, तो उसमें पेरोक्साइड वगैरह लाजमी होता उसमें है। फॉर श्योर ब्लीचिंग एजेंट मौजूद जी, होगा। बिल्कुल मारिया होता है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम कैसी है मारिया? ठीक हैं? जी, मैं राबिया बात कर रही हूँ राबिया, मानसरा से। जी 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 राबिया, माफ़ कीजिएगा, क्या सवाल है आपका? मारिया, जी, मैं ये पहले पूछ सॉरी रही थी राबिया, कि- एक काम कीजिए, पहले अपनी टेलीविज़न की आवाज़ कम कर लीजिए, या आप टेलीविज़न वाले कमरे से निकल जाएं, जी जी, ठीक है ना, क्योंकि मुझे मैं मेरी ये आवाज़ बात पीछे कर से रही आ थी रही है। कि मैंने जो है ना सिजेरियन के बाद जब मेरे बच्चे हुए थे 2, तो उसके बाद जो है मेरे चेहरे पर छाइयाँ बहुत ज्यादा पड़ गई है ना। तो ये मैंने डॉक्टर से भी वो किया था, तो उन्होंने कहा कि शायद कि वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, ब्लड का कोई इशू आ रहा है, लेकिन अभी मेरे ब्लड का कोई इशू भी नहीं आ रहा। तो मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, ठीक हूँ, लेकिन चेहरे से छाइयाँ जो है वो खत्म नहीं हो रही ना। अच्छा, आप मुझे बताएं राबिया, वैसे आपने कभी ज़िंदगी में वो जो क्रीम्स होती थी कभी लगाई तो नहीं? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मेरी स्किन माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी और फेयर कलर था मेरा। ओके 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 ओके, चले मैं इन सबसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि चाइल्ड बर्थ के बाद प्रॉब्लम आ जाती है। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसका जवाब भी लेते हैं। और ये जो आजकल रंग गोरा करने वाली जो ड्रिप्स लगी होती है, कैसे रंग गोरा भी होता है या नहीं? कुछ लोगों को देख के लगता है होता है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले राबिया की कॉल आई थी और राबिया बता रही थी कि बेबी के बाद से उनकी स्किन पे पड़ने लग गई हैं छाइयाँ और डॉक्टर्स को भी दिखाया है। तो अब ज़रा इस पर मैं जानना चाहूँगी कि ये जो छाइयाँ हैं ये क्यों पड़ जाती है? तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। सो इसे स्ट्रेच मार्क कहते हैं, जो आप आई थिंक शी ऑलरेडी नोज अबाउट इट। देयर आर वेज टू ट्रीट इट। ये बाय बर्थ लाइक विद पोस्ट प्रेगनेंसी होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। क्योंकि जैसे मलास्मा, इसको मलास्मा है वो भी, क्योंकि मलास्मा की जो आपकी बटरफ्लाई टाइप ऑन फेस जो बन जाते हैं, तो इसकी बात कर रही हैं, तो ये क्यों बन जाता है ये? देयर आर मल्टी फैक्टोरियल रीजंस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, देन ऑफ कोर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी बहुत बॉडी चेंज होती है, सो ऑफ कोर्स उसके एक साइड इफेक्ट्स होते हैं। देयर आर वेज टू ट्रीट इट, ये ठीक हो सकता है, बट अगेन यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, नॉट डू अ सेल्फ मेडिकेशन। इसके लिए टेटनोइड भी एक इंग्रेडिएंट होता है, आई थिंक शी नोज अबाउट इट, तो वो वी कैन रिकमेंड दैट। मॉइस्चराइजर है, देन देयर आर एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स वी कैन डू इट, माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी और कम हो जाती है, बेहतर हो सकता है। आई थिंक कि आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना होता है प्रेगनेंसी में। आपका जो आयरन इनटेक है, आप जिंक ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि लेडीज़ जो हैं वो एक तो बहुत जल्दी जल्दी उनके बच्चे होते हैं, तो बॉडी फुली हील नहीं कर होती है, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं। हमारे यहाँ डाइट जो है, हम जब खाना बनाते हैं तो भून भून के उसका बिल्कुल जो मत मार देते हाँ जी जी, I wanted to say that, but I
कुछ चीज़ों को हम नहीं रोक सकते, मुंह से निकल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसकी जो सब्जियां उनकी मत मार देते हैं, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स सारे खत्म हो बिल्कुल जाते ऐसे ही हैं। हमारे यहाँ सैलेड्स खाने का भी ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है जी, वो कचूमर बना लिया, बट प्रॉपरली जो हमारे इनफ ग्रीन्स नहीं हम लेते हैं, कोई हमारे जो विटामिन हैं वो पूरे नहीं होते, तो जिस चीज़ की एक प्रेग्नेंट औरत को ज़रूरत होती है वो हम लोग नहीं ले रहे होते हैं, दूध बहुत कम पीते हैं। सो व्हाट हैपन्स इज दैट आई पर्सनली फील that the body loses its strength, और जो जिन चीज़ों से आपकी स्किन सही रहती है वो चीज़ें कम होती चली जाती हैं, और फिर उसके बाद पोस्ट प्रेगनेंसी भी कोई केयर नहीं होती है। हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा वो हलवा सा बना के दे देते हैं, दैट्स अबाउट इट। पंजीरी बना के दे दी, पंजीरी बना के दे दी। पंजीरी में भी ये होता है कि चूंकि थोड़े बहुत तो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, लेकिन प्रॉपर जो एक हमारे यहाँ एक नरिशमेंट वाली चीज़ है वो नहीं होती है ना। फिर हम अपनी स्किन की केयर करते हैं। सेकेंडली ये होता है कि बच्चे के साथ आपकी रूटीन बिल्कुल आउट हो जाती है। नॉर्मल घरों में आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे आम घराने होते हैं, उसमें आपको फिर घर का भी देखना होता है सारा कुछ, तो औरत जो है वो अपने आप को बिल्कुल निगलेक्ट, वो अपना टाइम अपने आप को दे ही नहीं सकती।